कुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। एक बात बता दूँ, जो मैंने येस्टरडे को आप लोगों के साथ बंगाली में कही थी वही आज हिंदी में भी कहूँगी। उससे पहले आप लोग देख लीजिए। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ऐसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। যুক্ত থাকুন एसपी लिटरेचर साथ বা সঙ্গে। बेल आइकन को प्रेस या फिर हिट या फिर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। बेल आइकन के প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখবেন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন, তথ্য বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। तो शुरू करा जाक। गतकाल मैं शेयर करेছিলাম यूजी नेट जेआरएफ सेट डिसेम्बर। तो पहले हम बेंगली में बोलते हैं फिर हिंदी में, ठीक है। तो गतकाल मैं एगुलो बोलेছিলাম। তারপর টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম এসপি লিটারেচার यूजी नेट, টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক https://t.me/ugclet देन ऑनलाइन पेड कोर्स पेपर 1 500 मंथली जनरल, पेपर 2 1000 मंथली इंग्लिश, यूजी नेट सेट गेट जेआरएफ एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। व्हाट्सঅ্যাপ एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर 6295286207। এখানে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারের মাধ্যমে অনলাइन পেড কোর্স ছাড়াও আমরা কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক করে থাকি ইউটিউবের মাধ্যমে। আর আমরা এখানে বলেছিলাম হাউ টু সলভ ডিআই অ্যান্ড এমআর ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিংয়ের ক্ষেত্রে আমি এবং ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে গড়, শতকরা, রেশিও, বাংলায় মানে অ্যাভারেজ, পার্সেন্টেজ, অ্যাভারেজের মানে গড়, পার্সেন্টেজের মানে শতকরা, রেশিও মানে অনুপাত। তো এইভাবে এগুলো ডিআই আমাদের লাগে। তার সাথে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এর সংক্ষেপ এমআর, এখানে লেটার সিরিজ, নাম্বার সিরিজ, ব্লাড রিলেশনশিপ, ডিরেকশনস, অ্যাভারেজ, পার্সেন্টেজ, রেশিও, প্রফিট লস, এজ রিলেশনশিপ, ম্যাথ, মিক্সড ম্যাথ মানে মিশ্রণের অঙ্কগুলো যে আছে সেগুলো আমি দিয়ে রেখেছি। তারপর সিম্পল ইন্টারেস্ট, সরল সুদ, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, চক্রবৃদ্ধি সুদ, ফ্র্যাকশন, ভগ্নাংশ, n×n+1/2 এই একটা ফর্মুলার অঙ্ক অনেক ধরনের চাওয়া হয়। তো সেগুলো কিন্তু আসবে পরীক্ষায়, একটা হলেও আসবে। তারপর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, রিডিং কম্প্রিহেনশনে 30 নাম্বার, 5টা করে প্রশ্ন, 2টো করে নাম্বার, ইচ কোয়েশ্চেন ক্যারিজ 2 মার্কস, একটা করে প্রশ্ন 2 নাম্বার করে থাকছে। তারপর রিডিং কম্প্রিহেনশন আমরা পেপার 2 ইংলিশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই ইউজিসি নেটের। সেখানে আমরা পোয়েট্রি স্ট্যান্ডা থেকে 5টা প্রশ্ন 2 নাম্বার করে 10 নাম্বার, প্যাসেজে 5টা প্রশ্ন 2 নাম্বার করে 10 নাম্বার, 20, টোটাল 50 নাম্বার আমরা কিন্তু এইভাবে তুলে নিতে পারি। কিন্তু পরিশ্রম, প্র্যাকটিস তো করতেই হবে। প্র্যাকটিক্যাল পোর্শনে প্র্যাকটিস, থিওরি পোর্শনে মুখস্থ এবং মনে রাখা। তারপর আছে টিএ মানে টিচিং অ্যাপটিটিউডের শর্ট ফর্ম টিএ, আরএ মানে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, কম মানে কমিউনিকেশন, ডিআই মানে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, আরসি মানে রিডিং কম্প্রিহেনশন, এলআর মানে লজিক্যাল রিজনিং, এইচই মানে হায়ার এডুকেশন, এমআর মানে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, পিডিই মানে পিপল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, আইসিটি মানে হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। 10টা ইউনিট থাকে, 5টা করে প্রশ্ন থাকে, 2টো করে নাম্বার থাকে, টোটাল 50টা প্রশ্ন ইন্টু 2 নাম্বার, টোটাল 100 নাম্বারের পেপার 1 হয় প্রশ্ন। তারপর আমি এখানে তোমাদেরকে একটা রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি, সেটা হলো ইউজিসি নেট জেআরএফ সেট অক্টোবর, আজকে 1 তারিখ হলো, 30 দিন আমাদের হাতে নেট সেট জেআরএফের জন্য থাকছে। 30 দিন, নভেম্বরের 30 দিন, মানে অক্টোবরের 30 দিন, নভেম্বরের 30 দিন, ডিসেম্বরের 10 থেকে 15 দিনের বেশি আমি ধরবো না। ধরেই নিচ্ছি যে ডিসেম্বরের 15 থেকে 25-এর মধ্যে যদি এক্সাম হয় সেটাই আমরা ধরে চলবো। আর জানুয়ারিতে 31 দিন পাচ্ছি, ফেব্রুয়ারিতে প্রথম যাদের পরীক্ষা 7-8-এ তারা পাচ্ছে 6-7 দিন, আর যাদের পরীক্ষা 14-15 তারিখে তারা পাচ্ছে 6-7, মানে যারা 14-15 তারা পাচ্ছে 13 দিন, 13-14 দিন, এরকম 6-7 আর 13-14 দিন পাচ্ছে। এর বেশি কিন্তু না। দেখতে গেলে নেট সেট গেট জেআরএফ সব এক্সামই একদম পরপর চলে এসেছে দোরগোড়ায়। তার পাশাপাশি অনেক গভর্নমেন্ট জব আসছে, সেগুলো নিয়েও আমরা পরে আলোচনা করব। আজকে এখানে আমি বলছি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন একটা টেবিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এটা আজকে শেয়ার করতাম, কিন্তু এই টেবিলটা কিন্তু হয়তো না আমি 2025-এ 7ই জানুয়ারি পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে শেয়ার করেছিলাম পিয়ারসন বই থেকে। সেটাই আমাদের 7ই জানুয়ারি ইংলিশের ক্ষেত্রে এসেছে। এটা আমি আবারও তোমাদের বা আপনাদেরকে সলভ করাবো আগামীকাল, কিন্তু 5টা প্রশ্নই সলভ করাবো, বাংলা হিন্দি আলাদা আলাদা করে। কিন্তু তার আগে আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করে দিই, সেটা হচ্ছে যেটা আমরা বাংলায় বলেছি কালকে মানে হিন্দি ভাষায় বলবো। তো এটা আমি এই যে পেপার 2 সাথে খাতা আছে, তো শুরু করার আগে আমি এটাকে আগে হিন্দিতে বলে নিই, ঠিক আছে। তার আগে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে ইন্সপিরেশন, মোটিভেশন, এনার্জি দেবেন, অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত এবং শক্তি প্রদান করবেন বা করবে, যাতে করে আমরা ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি। অতীতেও করছিলাম, এখনও করছি, কিন্তু আরও যেন দারুণভাবে কাজ করে যেতে পারি।
तो अब हम चल रहे हैं हिंदी में बोलने। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों को चेतावनी देना, मतलब कितने दिन है खुद को भी बोलना, आप लोगों की बोलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई की बातें तो है ही। यूजीसी नेट से जेआरएफ गेट ये सारे एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्द। और फॉर्म फिल तो गेट के लास्ट डेट 6 अक्टूबर है विथ लेट फी। और आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का नेम है एक्सपी लिटरेचर यूजीसी नेट। टेलीग्राम चैनल के लिंक है https://t.me/UGCLit पहले है 2/ उसके बाद सेकंड में 1/1/ है। ऑनलाइन पेड कोर्स पेपर 1 500 रुपीज़ मंथली जनरल पेपर यूजीसी नेट सेट गेट के एंड पेपर टू इंग्लिश मंथली 1000 रुपीज़। हमारे यहाँ पे कोर्सेज लेने के लिए कोई भी आप लोगों का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 2 3 6 महीने फिक्स्ड, ऐसा नहीं है। आप 1 महीने के लिए लेकर देख सकते हो, अच्छे लगे तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ना लगे तो आप क्विट कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मेरी हाथों से बनाए हुए नोट मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, PYQs MCQ मॉक टेस्ट मिलेंगे, गाइडलाइंस मिलेंगे, स्ट्रेटेजी मिलेंगे, एग्जाम के दिन आप कैसे एग्जाम पेपर को हैंडल करोगे वो सारी चीज़ मिलेंगे। पेशेंस, काम कूलनेस, पॉजिटिव माइंडसेट, एनर्जी, फोकस्ड, ईच एंड एवरीथिंग मिलेंगे। हालांकि कुछ चीज़ पैसों से नहीं मिलते हैं, लेकिन एसपी लिटरेचर आप लोगों को एक कोर्स एक बार लेने से ही आप लोगों को डेफिनेटली सब कुछ देंगे, चाहे आप 1 महीने के लिए आए, चाहे आप 1 साल के लिए आए, चाहे आप उससे ज़्यादा या फिर कम टाइम के लिए आए। तो फिर आप लोगों को मुझे कहनी है कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट सेट गेट जेआरएफ एंड स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस की फीस मैंने नहीं दी, मंथली 200 रुपीज़ ओनली। सो 6295286207 इज आवर व्हाट्सएप नंबर एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी कोलैबोरेटिव वर्क हम लोग आप लोगों के साथ करते हैं। हाउ टू सॉल्व DI एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, ये 3 जो बेसिक्स है, ये जो पिलर है, ये आपका DI और MR में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों को एवरेज, रेशियो मीन्स अनुपात, परसेंटेज, एवरेज एंड अनुपात, इसको समझनी होगी। उसके साथ मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों को लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एज रिलेटेड मैथ, पिता पुत्र के एज रिलेटेड मैथ, मिक्स्ड मैथ्स और सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन, n × n+1/2 ऐसे फॉर्मूले से रिलेटेड मैथ्स आएंगे, जहां से आप पूरा 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और आप लोग यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 30 मार्क्स, और पेपर 2 में पोइट्री स्टैंजा में आपको 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स एंड पैसेज में 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, 20 टोटल 50 मार्क्स आप ऐसे उठा सकते हो। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल पोर्शन को प्रैक्टिस करनी होगी और थियोरेटिकल पोर्शंस को मेमोराइज करनी होगी, रिवाइज करनी होगी। और जो हमारे सिलेबस है TA का, ये सारे फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ मैं। TA मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, RA मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम मतलब कम्युनिकेशन, DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग, HE मतलब हायर एजुकेशन, MR मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, PTE मतलब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 10 यूनिट, each unit 5 questions, each question carries 2 marks, and total 50 questions into 2 marks is equal to total 100 marks in paper 1 UGC NET exam. It is not about GATE exam. GATE exam के question pattern ये सारे अलग है, मैं अगले अलग वीडियो में शेयर करूंगी। और आप लोगों को और चेतावनी जो देनी है वो देनी है कि आज अक्टूबर की फर्स्ट डे है और हम लोगों के हाथों में 30 डेज है यूजीसी नेट सेट के JRF के लिए। नवंबर के 30 डेज है, दिसंबर के 10 to 15 डेज है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों के हाथों में लगभग 2.5 months है। और आप लोगों के लिए आप समझोगे गेट के लिए आपको सिर्फ 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो है जनवरी के 31 डेज। और फरवरी के जिनके एग्जाम 7th को है उनको 6 दिन मिलेंगे पहले रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और जिनके एग्जाम 14th 15th को है उनको 13 से 14 दिन मिलेंगे। इससे ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। देखते देखते नेट सेट गेट JRF सभी एग्जाम आने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ में आने वाले टाइम में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में भी शेयर कर दूंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को आज DI सॉल्व करवाने वाली थी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 7 जनवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमने एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले ही पियर्सन बुक से सॉल्व करवाए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं एग्जाम हॉल में और सिर्फ नंबर्स को चेंज किए थे, लेकिन सेम क्वेश्चंस थे। और आज हम ये सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ यस्टरडे मैंने जो बंगाली में लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म के वीडियो शेयर की थी वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के टाइटल
थंबनेल देख लेना आप लोग कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लेंगे, और ऑब्वियसली हिंदी बंगाली दोनों में एक्सप्लेन है। आप लोग अपने एंड से अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से स्किप नहीं करेंगे, आगे पीछे करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आ रहे हैं पेपर 1 से हटके पेपर 2 में। उससे पहले प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस्पिरेटर शो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एस्पिरेटर शो के साथ। आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले टाइम में हम पेपर 1 पेपर 2 के 7 जनवरी एंड 27 जून के इंग्लिश के पेपर 1 पेपर 2 के दोनों मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के तो पहले उसको सॉल्व करेंगे नंबर 1। उसके साथ हमें अगर टाइम मिलेंगे तो हम अदर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी टॉपिक हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और तुम लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले होंगे, तो हम उस तरीके से प्रिपरेशन लेंगे। तो আমরা আগামী দিনে এই পেপার 1 পেপার 2 7ই জানুয়ারি আর 2025 7ই জানুয়ারি আর 27 জুনের কোয়েশ্চেন পেপার 1 পেপার 2 ইংলিশের দিনে সকাল বিকেলে শিফট নিয়ে তো আলোচনা প্রথমে করবই, তার পাশাপাশি আমরা আরও অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আসবো যদি সময় থাকে, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আসবো যেগুলো এক্সাম হলে চাওয়া হবে পেপার 1 পেপার 2 নেট সেট গেটের ক্ষেত্রে, যেটা কথা দিয়েছি যে 30 থেকে 50 নাম্বার আমরা এখান থেকে তুলে দিতে সাহায্য করবো এবং ওর থেকে বেশিও হতে পারে, তাই না। তো এখন আমরা চলে আসছি হিন্দিতে, গতকাল যেটা বাংলায় বলেছি সেটা এখন হিंदीতে बोले जाच्छी। तो अब हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के, तो मैंने ये क्योंकि आप चाहे कितने बार प्रिपरेशन ले लो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका 10th अटेम्प्ट हो, वो मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा मैटर करते हैं कि क्वेश्चंस कुछ बेसिक चीज़ों से ही पूछे जाएंगे, हालांकि बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म मिलाकर है। कैम्ब्रिज स्कूल 1920 से 1930 के बीच में है। ये एक ग्रुप स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज स्कूल के ग्रुप को हम वही बोल रहे हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स इसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ित है, उनको बोल रहे हैं। उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं, known for their rigorous and often the polemical approach। ये लोग क्यों जाना जाते हैं, आप लोगों को खुद से अगर पता है rigorous मतलब क्या है, polemical मतलब क्या है, then it is okay and you are in advance। बट आपको नहीं पता है तो आपको खुद से सर्च करके पढ़नी होगी what is rigorous और the polemical approach। तो ये दोनों चीज़ों से जुड़े रहने के लिए इनको जाना जाते हैं। टेक्सुअल टू टेक्सुअल एनालिसिस एंड द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ये टेक्सुअल मतलब टेक्स्ट जो होते हैं, पाठ्य जो होते हैं, बुक जो होते हैं, उसके जो क्लोज एग्जामिनेशन मतलब एकदम पूरे नीट एंड क्लीन तरीके से चुन के उसका एग्जामिनेशन करते हैं। लिटरेरी वर्क है ये, ठीक है, और कोई भी टेक्स्ट को हम लिटरेरी वर्क कह सकते हैं। तो की फिगर्स है एफर लिविस, क्यूडी लिविस एंड विलियम एमसन वेर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। इन लोगों के बहुत अहमियत है, बहुत प्रोमिनेंट भूमिका है, इंपॉर्टेंस है ये न्यू क्रिटिसिज्म के मूवमेंट को शेप करने में, ठीक है। और विच एम्फासाइज्ड क्लोज रीडिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, जो हर वक्त कह रहे हैं कि हम टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, पाठ्य पुस्तक को इंपॉर्टेंस देंगे और उसको एम्फासिस करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे बहुत क्लोज तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, बहुत सूखे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज, व्हाट इज क्लोज रीडिंग। द कैम्ब्रिज स्कूल प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन क्लोज रीडिंग। कैम्ब्रिज स्कूल हर वक्त स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा एम्फासिस कर रहे हैं क्लोज रीडिंग पे। क्लोज मतलब कि ऐसे नहीं कि आप और मैं बगल में बैठ जाए, हाँ बगल में बैठ के तो हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ये क्लोज रीडिंग है कि आप टेक्स्ट को पढ़ो बार बार, टेक्स्ट के वर्ड को समझो, टेक्स्ट की क्या क्या चीज़ें नहीं है उसको समझो और उसको एनालिसिस करो, उसको समझने की कोशिश करो। मेटिक्यूलसली एनालाइजिंग द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो लैंग्वेज क्या यूज़ किया जाए, उनके जो इमेजरी है, टू रिवील इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, इसके मूल्य, इसके तात्पर्य, इसके अर्थ समझाने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज को, भाषा को, इसके इमेजरी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें नेक्स्ट स्कूल में जा रहे हैं, शिकागो स्कूल, द शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी ऑल्सो नोन एज न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म। अगर आपको पता है तो इट इज़ ओके, अगर नहीं पता है तो गूगल, यूट्यूब, बुक, जो भी हो, जहाँ से भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप टीचर से हो, फ्रेंड से हो, जिनसे भी हो, हेल्प लो और ये कंसेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म। और ये वॉज अ प्रोमिनेंट स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन द 1930s एंड 1950s। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कूल है जो
1930s एंड 1950s में बहुत फेमस है इस टाइमलाइन के बीच। और की फिगर्स कौन से हैं? R.S. क्रेन है, वेन बूथ है, रिचर्ड मैक्योन है और एल्डन ओल्सन है। और नॉर्मन मैकलिन जो ये नेम है, ये की फिगर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, गेट में, सेट में। मुझे आप लोगों को और एक बात कहनी है कि ये जो फिगर्स मैंने लेकर आई हूँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ नाम मुझसे छूट गया हो, क्योंकि इंसान है, गलती कभी भी किसी के साथ कोई भी कर सकता है, हो सकता है, ये नेचुरल है। तो आप लोग खुद से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ और नेम अगर है तो उसके साथ अपने नोट खाते में इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट, जो द शिकागो स्कूल एम्फासाइज्ड अ फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। शिकागो स्कूल फॉर्मलिस्ट अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं, अप्रोच पे लिटरेचर में, फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड आर्टिस्टिक होलनेस ऑफ अ टेक्स्ट। बोल रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर पे, गठन में और इसके पूरे पूर्णता, एक टेक्स्ट आर्टिस्टिक पूर्णता मिलेंगे एक टेक्स्ट में, इसके से रिलेटेड बात करें। एग्जाम्पल दूं कि एक टेबल की बात कहते ही हमें फोर जो स्टैंड रहते हैं टेबल के, उसके याद आते हैं। टेबल के जो शेप होते हैं, हालांकि टेबल पढ़ाई के लिए अलग है, खाने के लिए डाइनिंग टेबल अलग है, लेकिन टेबल कहते ही हमारे मन में जो पहला आइडिया आते हैं वही है स्ट्रक्चर, जो कि 4 पैर होंगे और एक चीज़ें रखने के लिए जगह होंगे, और एक बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, एक मीडियम साइज के होंगे। तो लाइक दैट कि आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रही हूँ, व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज फॉर्म एंड व्हाट इज आर्टिस्टिक होलनेस ऑफ अ टेक्स्ट। और लिटरेरी आर्ट, हम आर्ट्स, लिटरेचर एक आर्ट के सब्जेक्ट, और आर्ट से हमारे ये सब्जेक्ट जुड़ी है, और आर्टिस्टिक, विदाउट आर्टिस्टिक होलनेस यू कांट फुलफिल इट। तो ये शिकागो स्कूल बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम डिकॉन्स्ट्रक्शन, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, मेरी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग यूनिट कह सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ब्रिटिश लिटरेचर के साथ अगर कुछ है तो थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, दीज आर माई फेवरेट यूनिट्स एंड फेवरेट टॉपिक्स। एंड उसके साथ साथ मुझे इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च, मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों से ज़्यादा लगाव है। बाय द वे, आप लोगों को बहुत सभी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी जो कहा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या कौन सा पूछे जाए पता नहीं। कभी कभी कठिन चीज़ों से इजी सवाल पूछे जाते हैं, इजी चीज़ों से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। सो वी डोंट नो, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन, अबाउट NTA और अबाउट आवर लाइफ और ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एवरीथिंग इज अनसर्टेन एंड एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, दैट इज द मेन थिंग ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों का लिए क्लियर हो गया है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग परिश्रम करके आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे तो एग्जाम आप ही का क्लियर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कोई भी चैनल को फॉलो कीजिए, उनका बात सुनना होगा, आपको परिश्रम करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शिवरात्रि सभी को। आज है जय माता दी, माँ दुर्गा पूजा की महानवमी। सभी को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड शिवरात्रि सभी को। तो आज के হচ্ছে মহানবমী, সবাইকে মহানবমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যদিও কয়েক ঘন্টা পর দশমী চলে আসছে, বিজয়া দশমী চলে আসছে। যাই হোক, সবাইকে আমার তরফ থেকে রইল মহানবমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যেহেতু আমরা ভিডিও বানাচ্ছি, এটাও আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি, কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, মানবতার মধ্যে পড়ে। অবশ্যই তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, পুজো খুব ভালো কাটাও, এবং আর একদিন পর পুজো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আমরা আনন্দে থাকবো, আবার 1 বছর ধরে অপেক্ষা, এবং আবার আসবেন মা। তার পাশাপাশি জীবনে যেন আরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, তার জন্য আমাদেরকে নিজের স্বপ্নগুলো পূরণ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। সেটা হলো আমাদের পরীক্ষা, ক্যারিয়ার, লাইফ, হেলথ, wealth, each and everything. That's it for today. Thank you very much. Stay connected to this literature, and please to like, comment, share and subscribe to this literature, and hit the bell icon so that you never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए, जुड़े रहिए इस literature के साथ. Thank you very much. Take care. God bless you all. Take care.